Morning students, how are you? Welcome to Maths Class 6 Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Part 9 Exercise 5.2। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स से विच एंगल इज ग्रेटर विदाउट मेजरिंग इट, विच मेथड हैव यू अप्लाइड। आपको बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है बिना मेजर किए हुए। तो बिना मेजर किए हुए एंगल को कंपेयर करने का तरीका हम लोग सीखे थे स्टूडेंट्स। एक तो होता है बाय ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है बाय ट्रेसिंग। तो इन दीज टू एंगल्स वी कैन सी स्टूडेंट्स विदाउट ट्रेसिंग वी कैन ऑब्जर्व दैट इंक्लिनेशन बिटवीन QR and QP is greater than inclination between OB and OA. Therefore, angle PQR is greater than angle AOB. So, we can write angle PQR is greater than angle AOB, and we have applied observation or tracing method. Which method have you applied? So we have applied observation method. By observation method we can say that angle PQR is greater than angle AOB. By tracing method we can also find that angle PQR is greater than angle AOB. Now see question number 2. Draw a triangle ABC. Measure its angles using a protractor and find their sum. तो वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नेम होगा ABC। इसके एंगल्स को मेजर करना है प्रोट्रैक्टर से और फाइंड करना है एंगल्स का सम। तो ट्रायंगल है 3 एंगल्स स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ इन सॉल्यूशन वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। नेम इट, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। दिस वे यू विल ड्रॉ अ ट्रायंगल। This is triangle ABC, and then measure all its angle. This is angle ABC, this is angle BCA, and this is angle BAC. So first measure the angle ABC. To measure the angle using protractor we have discussed in previous video students. Center of the protractor is put on the vertex. See, this is 90-degree angle. The face of the angle is towards right, so you can count from 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. This is 90 degree. So you can write students angle ABC equal to 90 degree. Then angle BCA. Now measure angle BCA. The face of angle BCA is towards left, so we will count from left side 0, 10, 20, 30, 40. This is 45, 46, 47 और 48. This is 48 degree. तो write 48 degree. Angle BCA equal to 48 degree. And angle BAC. To measure angle BAC, put the center of the protractor at point A, and face of the angle is towards right side, so this is 40, 41, 42 degree. So you can see this is 42 degree. So angle BAC equal to 42 degree. Now you have to find the sum. Add these 3 angles. तीनों एंगल मेजर कर लिए, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करते हैं। 8 + 2 10, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18. How much? 180 degree. It means कि sum of 3 angles
of triangle ABC is 180 degree, and you will know later that sum of all angles of any triangle is always 180 degree। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ये तो यहाँ पर एक ट्रायंगल के एंगल को मेजर करके देख लिए, लेकिन किसी भी टाइप का आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ एंगल AOB and take a ray OC in such a way that ray OC lies between rays OA and OB. Now using a protractor verify that angle AOB equal to angle AOC plus angle COB। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसका नेम होगा एंगल AOB, और एक रे लेना है OC, ताकि OC जो है कहाँ हो, OA और OB के बीच में हो। उसके बाद वेरीफाई करना है जो 3 एंगल बना उसमें वेरीफाई करना है रिलेशन कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB होता है। तो फर्स्ट वील ड्रॉ एंगल AOB दिस वे स्टूडेंट्स। यू कैन ड्रॉ एंगल ऑफ एनी मेजरमेंट। टू ड्रॉ एंगल यू हैव टू ड्रॉ अ रे OB and ray OA, thus you draw angle AOB. Now take a ray OC in such a way that OC lies between OA and OB। अब OA और OB के बीच में क्या लेना है स्टूडेंट्स, एक रे लेना है OC। अब एक रे ले लीजिए OC, ये रे हो गया OC, इसका नेम दीजिए OC। अब क्या करना है, एंगल AOB, देखिए अब प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB होता है कि नहीं। तो पहले AOB मेजर कीजिए, एंगल AOB कितना होता है, देखिए एंगल AOB आया स्टूडेंट्स आपका 80 डिग्री। तो इसको लिखिए एंगल AOB इक्वल टू 80 डिग्री। अब एंगल AOC को मेजर कीजिए। एंगल AOC को मेजर करने के लिए आपको O पर रखना होगा और एक ये लाइन को कवर करना होगा OA रे को प्रोटेक्टर का बेस लाइन से। तो ये आपका आ रहा है 30 डिग्री या 31 डिग्री, 31 डिग्री है, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 31 डिग्री। अब एंगल COB को मेजर कीजिए। एंगल COB देखिए ये है 50 डिग्री से थोड़ा सा छोटा है, मतलब थोड़ा सा पहले ये 50 है, 50 से पहले 49 डिग्री, इसको लिखिए 49 डिग्री। अब एंगल AOC प्लस एंगल COB फाइंड करते हैं। AOC प्लस COB इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 31 डिग्री प्लस 49 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 4 + 3 7 + 1 8, 80 डिग्री। तो एंगल AOB 80 डिग्री है स्टूडेंट्स, एंगल AOC प्लस एंगल COB क्या हो गया 80 डिग्री। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। वेरीफाई दैट एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB। देखिए AOB 80 डिग्री और AOC प्लस COB भी 80 डिग्री, ये दोनों का सम आया 80 डिग्री। इस तरीके से वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच डायरेक्शन विल यू फेस if you start facing north and make number A 1/4 of a revolution clockwise। क्या कह रहा है कि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं और 1/4
रिवॉल्यूशन आप क्लॉकवाइज लगाते हैं, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के दिशा में स्टूडेंट्स, तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद। तो इस तरीके से इसमें ऐसा बनाइए, एक प्लस का साइन बनाइए, सब चारों तरफ एरो लगाइए। इधर ईस्ट होता है, मैप में भी आप जानते हैं, आपका राइट हैंड तरफ ईस्ट होगा, ऊपर होगा आपके सामने नॉर्थ, उसके नीचे साउथ, और ईस्ट के अपोजिट में होगा वेस्ट, आपका लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा। तो आप किधर फेस करके खड़ा है, आप फेस करके खड़ा है नॉर्थ की तरफ, फिर देखिए नॉर्थ है, और 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 1 क्वार्टर घूमना है, 1/4 मीन्स क्वार्टर, क्लॉकवाइज घूमना है। तो नॉर्थ से 1 क्वार्टर यहाँ आया स्टूडेंट्स, ये 1 क्वार्टर हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो किधर आए आप, ईस्ट की तरफ। तो आंसर हो गया आपका ईस्ट, नंबर ए का। नंबर बी है 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ में ही फेस करके आप खड़े हैं नॉर्थ की तरफ, और हाफ रिवॉल्यूशन लगाते हैं 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन, ये तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है। तो हाफ रिवॉल्यूशन में आप कहाँ आ जाएंगे, देखिए नॉर्थ से 1 क्वार्टर और फिर 2 क्वार्टर, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 2 क्वार्टर हो गया, तो साउथ की तरफ आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। और सी 1 रिवॉल्यूशन, तो आप नॉर्थ की तरफ फेस किए हैं स्टूडेंट्स, और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएंगे। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वापस वहीं आएंगे 360 डिग्री एंगल, 4 क्वार्टर्स या 1 कंप्लीट, तो नॉर्थ ही की तरफ आपका फेस होगा। तो इस तरीके से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 3 एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि 3 से स्टार्ट करता है क्लॉक का हैंड मूव करना, और 1.5 रिवॉल्यूशन लगाता है, तो कहाँ पर पहुँचेगा। तो इसमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कोई भी क्लॉक आप लेते हैं, जैसे ये क्लॉक है, 3 से स्टार्ट करेंगे और 1.5 रिवॉल्यूशन लगाएंगे, तो 1.5 रिवॉल्यूशन का मतलब आप समझिए हाफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब तो 3 से वापस 3 पर ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कहाँ पर पहुँचेगा 3 से, तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, है ना, हाफ स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो मतलब 3 के अपोजिट में आप पहुँचेंगे। तो 3 पर से हाफ रिवॉल्यूशन में कहाँ पहुँचेंगे, 9 पर, तो 1.5 रिवॉल्यूशन में भी कहाँ पहुँचेंगे, 9 पर, तो आप लिख देंगे इसका आंसर 9। अब देखिए बी 12 एंड मेक्स 1 क्वार्टर ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब आपका हैंड 12 पर है और क्वार्टर रिवॉल्यूशन लगाता है क्लॉकवाइज, तो 12 से क्वार्टर रिवॉल्यूशन मीन्स कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल। तो क्वार्टर रिवॉल्यूशन में 3 आवर्स होगा, क्योंकि 12 आवर्स होता है एक क्लॉक में, तो 1 2 3, तो 3 पर जाएगा क्वार्टर रिवॉल्यूशन में, ये 90 डिग्री हुआ, तो इसका आंसर होगा 3। 12 से क्वार्टर रिवॉल्यूशन में 3 पर पहुंचेगा हैंड। नेक्स्ट है सी 6 एंड मेक्स 3 क्वार्टर्स ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब 6 पर है आपका हैंड, है ना, जैसे इस क्लॉक में देखिए हैंड आपका सपोज 6 पर है, 3 क्वार्टर्स चलेंगे, तो 1 क्वार्टर में कहाँ आएगा, 3 आवर्स चलेगा 9, 2 क्वार्टर्स में कहाँ चलेगा, फिर 9 से 3 आवर्स फिर चलेगा 12, और 3 क्वार्टर्स में 12 से कहाँ आएगा 3, तो 3 क्वार्टर्स में कहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 पर, 6 से 3 पर आ जाएगा, तो इसका आंसर लिखेंगे आप 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब हर फिगर में आपको कितना डिग्री का एंगल बन रहा है हैंड्स के बीच में, वो आपको फाइंड करना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है और 12 आवर्स होता है 1 क्लॉक में, तो 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स, आपको बताए थे 30 डिग्री का एंगल बनता है 1 आवर में। जैसे एक हैंड 12 पर रहेगा, दूसरा हैंड 1 पर रहेगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट हैंड 12 पर है और आवर हैंड 5 पर है, तो कितना आवर्स हुआ, 5 आवर्स हुआ स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 आवर्स। तो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 आवर्स में 30 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 150 डिग्री का एंगल बनेगा। उस ढंग से इसमें देखिए नंबर बी, मिनट हैंड 12 पर है, आवर हैंड 3 पर है, तो 3 आवर्स हुआ, तो
तो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल, तो 3 आवर्स में 33 जा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब 1 राइट एंगल बनेगा। अब सी में देखिए आर हैंड कहाँ पर है, ये एग्जैक्ट 2 पर भी नहीं है 3 पर भी नहीं, मतलब 2 और 3 के बीच में इसको मान लीजिए स्टूडेंट्स, और मिनट हैंड है 6 पर। तो अगर 2 पर होता तो 2 से 6 4 आवर्स होता, लेकिन ये 2 और 3 के बीच में है, तो 3 से 6 तो 3 आवर्स हुआ स्टूडेंट्स, 3 आवर्स मतलब 90 डिग्री हुआ, 30 × 3, और हाफ आवर्स मतलब कितना होगा 15 डिग्री का एंगल होगा। 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो हाफ आवर ये 15 डिग्री हुआ, प्लस 30 30 30, तो 90 और प्लस 15 कितना डिग्री हुआ स्टूडेंट्स 105 डिग्री। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बना 2 हैंड्स के बीच में, किसी भी क्लॉक में आप बता सकते हैं किसी भी समय। 1 मिनट में आपका जो है 6 डिग्री का एंगल बनता है 1 मिनट में, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि 60 मिनट होता है क्लॉक में, 360 डिवाइडेड बाई 60 करते हैं तो 6 आता है। तो 1 आवर में तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, अगर 1 मिनट भी मूव करता है तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। 7 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और जीरो एंगल्स। ये सब डेफिनेशंस बताए हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको याद होगा तो आराम से इसको कर लेंगे। जैसे 110 डिग्री ऑब्ट्यूज होगा, 35 डिग्री एक्यूट होगा, 0 डिग्री तो ये जीरो एंगल है, ये तो जीरो ही है। 67 है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, एक्यूट होगा। 270 है, रिफ्लेक्स होगा। 180 है, स्ट्रेट होगा। 90 राइट होगा। 350 रिफ्लेक्स होगा। 89 होगा एक्यूट, और 135 होगा ऑब्ट्यूज। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस ढंग से आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर यह मैथ्स वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।